Good morning, students. So today I am covering self-management skills and what are the skills which are required in self-management. So first comes self-confidence. What is self-confidence? If I go as per the definition, then it is said to trust or having trusting one's capacity and potential to achieve the necessary goals, objective and challenges in life and being worthy of leading a happy life. मीन्स अपनी योग्यता, अपनी क्षमताओं, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना और उसके अनुसार ही आपको काम करना और एक सफल जीवन जीना। खास करके एक सफल जीवन, अब एक स्टूडेंट की लाइफ में सफल जीवन क्या है कि यू हैव परफॉर्म वेल इन योर एकेडमिक्स, यू हैव परफॉर्म गुड एज पर योर बिहेवियर। दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ। अब आपसे कहते हैं कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस का फायदा कहाँ लेते हैं, वेयर डू वी टेक द एडवांटेज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेली वर्किंग। लाइक if I say you have to initiate a new things, like tomorrow you have to give a lecture on current ongoing pandemic, initially you might be hesitating, but once you are prepared and giving the presentation, next day you might be feeling bit confidence about yourself. Okay, I have performed, I have given the presentation, I am feeling confidence about myself. This is the self confidence. It's give you the advantage that okay, I can do the things better next time also. I can do the things right now and I can perform nicely later on. This is the self confidence. Then comes stress management. What is stress? Stress is the thing which affects you for a time being. If it is for a prolonged period, अगर ये स्ट्रेस हम जिसे कह रहे हैं लंबे समय तक चलता है तो एक तनाव हो जाता है, अवसाद हो जाता है, कॉल्ड एज डिप्रेशन। तो हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस, जो हमें तनाव मिलते हैं अलग अलग चीज़ों से, उसे कैसे मैनेज किया जाए, पहले हम इसको समझते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट? द स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल टेंशन एंड डिस्कम्फर्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अनसीन डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस। हम कई बार तनाव में आ जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को सोचकर जो पहले कभी घटित ना हुई हों, ये जो आगे होने वाली हों, जो काफ़ी कठिन हों, ठीक, हमारे लिए कंफ्यूजिंग और चैलेंजिंग हो, तो वहाँ पर हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। देन व्हाट वी कैन डू फॉर दिस टू अवॉइड दिस थिंग्स? वी कैन डू सम प्लानिंग और यू कैन से लाइक यू हैव टू फेस एग्जाम आफ्टर 1 month, आपको 1 महीने बाद एग्जाम देना है। then what is the better way to avoid this kind of stress which is coming through the exam? You have to prepare well, you have to do your study in advance. That's why whenever the exams comes, for that moment you are ready. That's the one aspect you can manage your stress which is coming to you. Then comes independent working. This is one skills. Like if you have assigned any task or work, if you are having the capacity and you are ready to work independently, it boosts your confidence. It's a gain for your management skills. आप किसी काम को अगर खुद से कर सकते हैं, आपकी दूसरों पर निर्भरता नहीं होती उस काम में, तो आप उसमें और ज़्यादा निखार करते हैं क्योंकि आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसमें और बेहतर करेंगे। दैट्स इंक्रीजेज यूर पोटेंशियल्स। देन कम्स टीम प्लेयर. इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल देन अ सिंगल वर्क कैन बी डन बाय यू। कई बार ऐसा होता है कि हम काम को मिलकर ही करते हैं। व्हेन यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, टीम, क्लास ऑल्सो वी नीड टू वर्क, लाइक यू हैव असाइन्ड अ प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट, देन यू हैव टू वर्क इन अ टीम कोलैबोरेशन। तो वहाँ पर हर एक का अपना योगदान रहेगा। ईच हैज़ टू गिव हिज पार्ट। एज द वर्ड टीम सेज टुगेदर ईच अचीव मोर, तो मिलकर ही सब लोग क्या करते हैं, अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो यू हैव टू बी रेडी टू वर्क इन अ टीम. इफ यू कैन work in a team, then definitely I can say you are having a good management skills. Then comes time management. Time management is must. Like if some work is assigned to you, you have to finish that work within a given time frame. For this you have to prepare well. Okay, if you have to finish some task tomorrow, so it should be in your mind that I have to finish in today onwards only, today only. अगर कल कोई काम आने वाले कल पे आपको पूरा करना है, तो आपकी कोशिश ये नहीं चाहिए कि आज वो आप पूरा कर लें। तो इससे क्या हुआ कि इट्स इंक्रीजेज योर वैल्यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन, टीम, क्लास, वेर एवर यू आर। स्टूडेंट्स है, उसको कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, टीचर ने दिया, वो टाइम से उसे कर लेता है। उससे क्या होता है कि इट बिल्ड्स अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट ऑल्सो। ये टीचर भी उस पर भरोसा करने लगता है कि ये बच्चा समय पर काम करता है, तो उससे और अच्छा काम हम दे सकते हैं, ये बेहतर कर सकता है। देन कम्स सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन इज अ थिंग विच boost your confidence, I can say. Self motivation
कीप्स यू इन द फ्रेम ऑफ लर्निंग, आपको हमेशा प्रेरित करता है कुछ नया सीखने के लिए, क्योंकि आपको कोई नहीं बता रहा कि यू हैव टू डू दिस एंड दैट, बस यू आर हैविंग द ईगरनेस फ्रॉम योर इनसाइड दैट आई वांट टू डू समथिंग बेटर देन अदर्स, एंड फॉर दैट you have to learn, okay, learn new skills, new technology, upgrading yourself. This is known as self motivation. You are ready to learn and take the things by yourself, not by saying to of others, but by your own efforts and potential. Then comes personality management. How a person's personality is managed. Personality is a mixture of different kinds of attributes, you can say, like grooming, how you are dressing, how neat and tidy you are, how you are behaving, your apt communication skills, including your verbal, non-verbal, your body language, you have behavior. This all builds a personality. व्यक्तित्व का निर्माण हम कह सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसे बनकर निकलता है, जब आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, अपने बड़ों से छोटों से किस तरह व्यवहार करते हैं, आपने किस तरह से कपड़े पहने हैं, आप बोलचाल का तरीका कैसे रखते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, अपने बड़ों से छोटों से कैसे रिगार्ड करते हैं, ठीक। और क्या हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन किस तरह का है, आप वर्बली किस तरह बात करते हैं, नॉन वर्बली कैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं, ये सारा चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है. इफ़ यू हैव ऑल दिस इन अ बैलेंस देन यू कैन से यू हैव द good personality management. And having these skills is a self-management skills, and it helps you a lot in your professional life, personal life, and career also. This is the things for management skill. Now, as I told you, in self-confidence is all about expressing yourself in front of others, presenting yourself in front of others. अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, किसी काम को करना, ये सब क्या रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का पार्ट है. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारण हैं, घटक हैं जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने में मदद करते हैं. तो सबसे पहला होता है सोशल एस्पेक्ट्स. इन सोशल इट्स कम्स इंटरेक्शन विद फैमिली एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसमें हमारे परिवार का और आसपास की चीज़ों का बहुत असर पड़ता है. जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं उसमें हमारी फैमिली आ जाती है, रिलेशनशिप आ जाती है, हमारे रिलेशन में कितने लोग हैं, किससे हम संवाद करते हैं, हमारे टीचर्स आ जाते हैं, और साथ साथ में मीडिया टेक्नोलॉजी आ जाती है. क्योंकि आज आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन के मोड बदल चुके हैं, आप इंटरनेट से बहुत कुछ सीखते हैं, आप मोबाइल टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ सीख रहे हैं. तो ये सारा क्या है, ओवरऑल इट्स बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में मदद करता है. दिस इज सोशल फैक्टर्स आई कैन से. देन कम्स कल्चरल. इन कल्चरल वी हैव थ्री थिंग्स: वैल्यूज, beliefs and customs. Values means like in which background you are belonging. Your family is having some values. आपके परिवार की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है, वो किसी चीज़ को मानते हैं, उसके हिसाब से आप जिस माहौल में पले बड़े हैं उसी हिसाब से आपकी फैमिली वैल्यूज डेवलप होती हैं. देन कम्स आवर बिलीव्स. लाइक हमारे देश में कहा जाता है जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम, ऑल दिस वर्ल्ड इज़ अ फैमिली. सारा विश्व एक परिवार की तरह है. तो हमको दूसरों के साथ वैसा ही ट्रीट करना चाहिए कि देश के हिसाब से हम परिभाषा के, जाति के हिसाब से किसी से भेदभाव न करें, क्योंकि सब एक है. इसके अलावा एक और हमारे यहाँ कहा जाता है कि अतिथि देवो भव. जो भी आता है मेहमान, वो किसके समान होता है, देवता के समान होता है. हम उसका आदर करें, सत्कार करें. तो ये हमारे सिस्टम में होता है. तो कई बार हम इसके कारण ठगे भी जाते हैं, लेकिन ये हमारे किस में, कस्टम में बैठा हुआ है, हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठा हुआ है. देन कम्स कस्टम्स. कस्टम मीन्स इन इंडिया, यू नो, country with diversity, different religion sects we have. There we have different functions, traditionals. अब आप देखते हैं कि साल में दिवाली हम मनाते हैं, साथ साथ में हम ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं. तो ये हमारे देश का जो अपना एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो हमारे कल्चर्स कस्टम्स हैं, वो भी हमारे क्या करते हैं, एक तरह से कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं. हम वो हमारे साथ ऐड होती जाती हैं हमारे सिस्टम में. These are the cultural factors which affects our confidence. And then comes physical. In physical we have physical self-efficacy. Okay, physical self-efficacy means how physically you are fit. अब आपसे कोई हार्ड वर्क करने को कहा जाता है, तो ये आपको ये देखना होगा. मैं if I say you have to be in a body building activity,
देन यू हैव टू चेक एम आई फिट फॉर दिस. ये मैं कहता हूँ कि यू हैव टू टेक पार्टिसिपेट इन बॉक्सिंग. आर यू फिट फॉर दैट? यू हैव टू टेक पार्टिसिपेट इन अ फुटबॉल मैच. आर यू सो एक्टिव टू रन? दीज आर द फैक्टर्स. फिजिकल सेल्फ एफिकेसी, क्या आप फिजिकली फिट है इन सारी चीज़ों के लिए. देन कम्स फिजिकल एक्टिविटीज. As it is said, to be fit, you have to be physical active. So physical activity comes like you are taking regular exercise, yoga, meditation. Physically, you are going to the ground and doing running and all things, doing gym, going to gym and doing exercise and all. So this maintains your physical activity and it builds your confidence. Because if you are physically fit, physically active, definitely it boosts your confidence. And simultaneously, then comes social physical anxiety. These are things. What happens? We have a kind of fear. What others are thinking about me when I go in a social gathering, when I go in a party, when I'm meeting in a group. So I have one thought in my mind, then what others are assuming about me. मैं ये सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कि मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसा पहन रहा हूँ, मैं कैसे खा रहा हूँ. तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें असर करती हैं. अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिव फ्रेम में ले रहे हैं तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, अदरवाइज विल डिक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल. तो दीज आर द फैक्टर्स, social, cultural and physicals. Now what are the tips then you can boost your confidence? Boost is the secret of my energy, it is said. What is the secret to boosting your confidence? Then comes, first thing comes, you have to get rid of negative thoughts. होता है हमारे दिमाग में भी कई बार आती है कि आपको कोई लेक्चर ही डिलीवर करना है तो आपको पहले सोचता है मुझे तो इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, बहुत कम समय में कैसे तैयार करूंगा. लेकिन उसी की जगह आप ये सोचें कि whatever time I have given, whatever time I have, I will take advantage of it and try to give my best. तो जहाँ आप गलत सोचते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, वहीं पर अगर सकारात्मक सोच रखते हैं तो योर कॉन्फिडेंस विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट. देन कम्स थिंक पॉजिटिवली. कोई भी आपको काम असाइन किया जाता है, देन यू हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. आपका सकारात्मक सोच अगर होती है तो किसी काम को आप दिल से एक्सेप्ट करते हैं, देन यू पुट योर होल एफर्ट्स, डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस विल बी अप. देन कम्स स्टेइंग हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स. लाइक हम लोग शिकायतें करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास ये होना चाहिए, बट अदरवाइज यू शुड बी कर्टेशियस एंड बी थैंकफुल वट एवर यू आर गेटिंग इन द लाइफ. आपको छोटी छोटी जो चीज़ें मिलती हैं, अभी जैसे आप कोरोना काल में परेशान होंगे, लेकिन आपको एक पॉजिटिव यहाँ तो दिखता है. यू आर विथ योर फैमिली, देयर इज नो नीड फॉर ट्रेवलिंग वन प्लेस टू अनदर. आपको सुबह उठ के कहीं ट्रेवल नहीं करना है, बस यू हैव टू बी रेडी फॉर योर स्टडी. आप फ्रेश हो जाइए, नहा लीजिए, आप बैठ जाइए पढ़ने को हमारे साथ. आपको टाइम भी बचता है. व्हेन यू आर फीलिंग हंग्री, इवन यू कैन गेट इजीली द कुक्ड फूड एट योर होम. गरम गरम खुशबूदार खाना आपको मिलेगा. तो कितना पॉजिटिव आपके साथ में हो रहा है, अगर उस एस्पेक्ट में आप देखते हैं तो यू हैव टू हैव द पॉजिटिव थिंकिंग. देन कम्स staying happy with the small things, like whatever things are happening, you are getting, you should be thankful to the Almighty, or whatever the situation, you have to accept it with smiling faces. Then comes staying clean, hygiene and smartness. It is a part of, as I said earlier, in personality development. You should be neat and tight, okay, dress well, look smarty. Somebody will say, okay, he looks nice, he dressed well, he talks nicely, having good communication skills, he gives regards and all. So this is the part of staying clean, hygienic and smart. Because health and hygiene is main thing. If you are keeping yourself in a healthy position, taking care of your hygiene, definitely you will be in good health and you can perform well. Your confidence level will be up. Then comes chatting with positive people. Means you should have a family. In a family you should also have some friends in family as well as outside also. So you have to keep one thing in your mind: whoever you are in a conversation, they must be in a good frame of thinking. Like they should not disregard you, they should not give you negative points, they should promote you, they should ask you, okay, you have such good quality or you can improve this way. Means you should have the company of the गुड थिंकिंग पीपल. आप उन लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपको अच्छे काम में मदद करते हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं. ये नहीं कि आपके कहें कि आप में ये क्वालिटी नहीं है, आप ये नहीं कर सकते. इस तरह से लोगों से बच रहे. और
पॉजिटिव लोगों के साथ रहें कि जो आपको ये बता रहे हैं कि आप ये अच्छा चीज़ कर सकते हैं, ये कमियां हैं तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस वे व्हाट विल हैपन, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी बूस्टिंग एंड you can perform well. So these are the topics about self management skills, and main thing is self confidence. What are the factors in self confidence, and what are the things, tips और self confidence. टिप्स क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की, तो आज हमने ये सब जाना. आई डू होप यू हैव गॉट द आइडिया. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू बूस्ट इट, what are the tips for it. So keep your confidence level up and high, and do learning with this attitude only. If you are having this in your mind that I'm learning, I'm getting all the things, definitely you are learning and moving ahead with smile in your face. So take care, have a nice day. Thank you.